हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर साइंस टीचर। टेक आउट योर साइंस टेक्स्ट बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट यूनिट, that is plants kingdom. The chapter is chapter number 1 and the chapter name is plants preparing and storing food. हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में जानेंगे। हमने पिछले क्लासेस में भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि प्लांट्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। जो बड़े से प्लांट होते हैं उसे हम ट्रीज बोलते हैं, जो उनसे थोड़े छोटे होते हैं उन्हें हम श्रब बोलते हैं, उनसे भी थोड़ा छोटे और जो वीक होते हैं जिनके स्टेम उसे हम हर्ब बोलते हैं, अर्ब बोलते हैं। ओके, एंड कुछ क्लाइंबर्स और क्रीपर्स भी होते हैं जिनके जो स्टेम है काफी ज्यादा वीक होते हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि कैसे वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और उसे स्टोर करके रखते हैं। So before starting the chapter, there are some chapter objectives given, students. First one is parts of a leaf. Next one, how do leaves make food? Next one, how do plants use their food? Next one, some unusual plants. Next one, energy flow in living things. Next one, interdependence of plants. Next one, balance in nature. And the next is next point is interdependence of plants and animals, and the next point is balance in nature. Let's start the chapter. Our earth has a vast variety of plants. Plants are also living things like us. They also need food for their survival, but like human beings and animals, they do not depend on others for food. They can prepare their own food with the help of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment present in leaves that makes them green. ओके, सो हमें यहाँ पर बताया गया कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो एक वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स है। ओके, प्लांट्स जो कि क्या है आर ऑल्सो द लिविंग थिंग्स, जैसे कि हम है लिविंग थिंग्स। ओके, उनको भी क्या चाहिए? खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। पर जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, अदर्स पे फॉर फूड के लिए, प्लांट्स डिपेंड नहीं करते हैं। प्लांट्स अपने आप ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ओके, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, पत्तों में प्रेजेंट होता है प्लांट के। ओके, जो कि पत्तों को, लीफ को ग्रीन बनाता है, हरा बनाता है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ. Observe a leaf of a plant. The part which is flat and green is called the leaf blade. The tip of the leaf is called the leaf apex. A midvein or midrib is seen running through the middle of the leaf. There are a number of side veins emerging from the midrib. The midrib and side veins have small tubes inside them. These tubes are of two types. First one, the tubes that carry water from the roots to the leaves are called the xylem. Next one, the tubes that help in carrying the food made in the leaves to all the other parts of the plant are called phloem. The inside of a leaf shows many leaves. The inside of a leaf shows many layers of cells. We can see these layers by viewing a section of a leaf under a microscope. These cells contain chlorophyll. Chlorophyll makes the leaf look green. The lowest layers of cell has many minute openings called stomata. Each opening is called a stoma. The stomata are guarded by the guard cells. They help in the exchange of gases and water vapor between the leaf and the surrounding air. Okay, so students, आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है लीफ प्लांट का। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इधर आपको लीफ दे रखा है। ठीक है, लीफ का डायग्राम आपको दे रखा है। ओके, अब वो पार्ट लीफ का जो कि ग्रीन है और फ्लैट है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ प्लेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो टिप है लीफ का, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको लीफ प्लेट दिया है जो कि फ्लैट पार्ट है लीफ का, और यहाँ पर आपको दिया है लीफ एपेक्स जो कि एकदम टॉप पॉइंट है लीफ का। ओके, अब मिड वेन और मिड रिप भी आपको दिख रहा होगा जो कि रन कर रहा है मिड फॉर्म में, मिड मतलब कि बीच में ही। ठीक है, ये रहा आपका मिड रिप। और आप कुछ साइड वेन्स भी दे रखे होंगे, नंबर ऑफ साइड वेन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका साइड वेन।
ओके। साइड वेन्स में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे से ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर, एंड ये जो ट्यूब्स है ये दो टाइप के होते हैं। एक ट्यूब होता है आपका जाइलम, ओके, और एक ट्यूब होता है आपका फ्लोएम। अब ये जाइलम क्या करता है, जाइलम पानी को पहुंचाता है, वो पानी रूट के जरिए पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। और जो फ्लोएम जो कि खाना जहाँ पर प्रिपेयर होता है, यानी कि लीफ खाना प्रिपेयर करता है, ठीक है, तो खाना प्रिपेयर जब हो जाता है तो फ्लोएम खाने को पहुंचाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, एंड इनसाइड ऑफ अ लीफ हमने देखे लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, और हम उसमें देखते हैं कि लेयर्स जो है वो सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर हम अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम देखेंगे उसमें लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स है इसके अंदर क्या कंटेन होता है, क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट। दैट इज वाई, यही रीजन है कि जो लीफ है वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, जो लोएस्ट लेयर होता है सेल का, उसमें कुछ माइन्यूट ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, और हर एक ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। स्टोमेटा में कुछ गार्डेड सेल्स होते हैं जिसे हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्म करते हैं, जितना उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट हो उतना लेंगे, जितना नहीं चाहिए उतना नहीं लेंगे, ठीक है। एंड ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी, एंड ये जो गार्डेड सेल्स है, गार्ड सेल्स यानी कि स्टोमेटा, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, बिटवीन द लीफ एंड द सराउंडिंग एयर। Now student, the next topic in this one is how do leaves make food? The green leaves are called the kitchen of the plants because they make food for the plant. The process of making food by plants with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means making. The green plants make their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Green leaves contain chlorophyll. Now the points are also given here. First one, plant absorb water and mineral from the soil with the help of roots. Next one, they absorb carbon dioxide from the air with the help of stomata. Next one, they get energy from the sun. Next one, they make food in the form of glucose, which is a simple sugar, and oxygen gas is given out. अब यहाँ पर हमें बताया कि ग्रीन लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं क्योंकि वो खाना बनाते हैं, ओके, एंड अपना खाना खुद ही बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। एंड ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो खाना अपना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब मेकिंग, ओके। सो द ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, ओके। एंड ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ओके। Here you can see the process of photosynthesis in this one. Light, you can see sunlight, water, H2O, and O2 is the oxygen gas, okay, which is released, okay. नाउ कुछ पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिए, जैसे कि प्लांट जो है वो ऑब्जर्व करता है पानी को, मिनरल्स को अपने रूट की मदद से, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। एंड उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, ओके, जो उनके लीफ में प्रेजेंट होता है। एंड उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। उनको फूड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, जो कि एक सिंपल शुगर होता है, एंड ऑक्सीजन गैस जो कि वो रिलीज कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर माइंड। रेने जोचिम हेनरी डुटरॉस्ट 1776 to 1847 was a French botanist who discovered small opening stomata on the underside of leaves, and in 1832 showed that gas exchange in plants take place through stomata. He also proved that only cells that have chlorophyll can transform light energy into chemical energy in the form of food. Okay, सो यहाँ पर हमें किसके बारे में बताया गया, एक बोटानिस्ट के बारे में बताया गया जिनका नाम क्या है, रेने जोचिम हेनरी ड्यूरोशेट, ओके। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने स्मॉल ओपनिंग स्टोमेटा, यानी कि ओपनिंग कौन सी हो गई, स्टोमेटा हो गई, ठीक है, ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ में डिस्कवर किया था। और 1832 में उन्होंने शो किया कि गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है, स्टोमेटा की मदद से। उसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, ओके। तो इससे ये पता चलता है कि प्लांट्स जो है वो भी रिस्पायर करते हैं, वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, ओके। एंड इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फूड, ओके स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर भी इसका क्लू देख सकते हो, यहाँ पर आप इसका एक पूरा आपको फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से याद भी करना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, that is sunlight, chlorophyll, sugar plus oxygen, okay.
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, इट गिव्स आउट शुगर एंड ऑक्सीजन. ओके, दीज आर द प्रोडक्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड. अब ये प्लांट्स जो अपना फूड कैसे यूज करते हैं. प्लांट्स यूज देयर प्रिपेयर्ड फूड और ग्लूकोज इन द फॉलोइंग वेज. अब ये इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 हमें दिया है, दे बर्न इन टू प्रोड्यूस एनर्जी. नेक्स्ट वन, दे यूज इट फॉर देयर ग्रोथ. नेक्स्ट वन, first one is student, they burn it to produce energy. Next one is they use it for their growth. Next one is they store extra food, extra glucose. Okay, तो यानी कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे यूज करते हैं, या तो वो बर्न कर देंगे ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो ग्रो कर सके, और वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं इसे, और वो अपना एक्स्ट्रा जो खाना होता है वो स्टोर करके रखते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया उसे स्टोर करके रखते हैं. Now students, before moving further, there is an activity work. तो ये activity work आपको खुद perform करना है, but under the supervision of your elder. Okay. And another activity work is also given. This activity also you have to perform by your own, but under the supervision of your elder. Okay. Now the next topic in this one is some unusual plants. Some plants like the cactus do not have. Some plants like the cactus do not have leaves. Where then is their food made? It is made in their green stems. Molds and mushrooms are non-green plants. They do not have chlorophyll. They cannot make their food. They get their food from dead and decaying plants and animals. The leaves of some plants like the croton have chlorophyll, but they appear dark red. This is because of the presence of a red substance that hides the green chlorophyll. Does photosynthesis take place in such leaves? Yes, it does, because chlorophyll is present. अब हमें ये बताया गया कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, उनमें लीव्स तो नहीं होती, तो अपना खाना वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो अपनी स्टेम की मदद से खाना प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनकी स्टेम ही उनके लीफ की जैसे एक्ट करती है. वो पानी को भी स्टोर करके रखती है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट इलाके में पानी अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, और अपना खाना वो स्टेम की मदद से ही बनाते हैं. नेक्स्ट है मोल्ड और मशरूम. मोल्ड और मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए वो अपना खाना खुद बनाते नहीं है. तो वो क्या खाते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है उसे खाते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब एक और तरीके के प्लांट होते हैं जो कि है क्रोटन. क्रोटन रेड कलर के होते हैं, पर उनके अंडर ऑफ द लीफ में क्या छुपा हुआ है, दैट ग्रीन पिगमेंट छुपा है, यानी कि क्लोरोफिल छुपा है, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ओके, एंड हम ये बोल सकते हैं कि जो क्रोटन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि दे कंटेन द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन इट. ओके, now students, before moving further, there is a point, boost your mind. As a tree grow older and taller, less sunlight reaches the leaves on the lower part of the tree. When this happens, the lower area shed their leaves and eventually their branches. Okay, अब यहाँ पर हमें बताया गया कि आप जब गहरे जंगल में देखोगे तो गहरे जंगल में क्या होता है कि जब सनलाइट जाती है तो सनलाइट की रोशनी पूरे पेड़ में ही रहेगी, मतलब ऊपरी ऊपरी वाले पेड़ में रहेगी, नीचे तक नहीं पहुंच रही है. ठीक है, तो नीचे वाले प्लांट में अगर वो नहीं पहुंचेगी तो उन प्लांट्स की जो लीफ है जल्दी झड़ने लग जाएंगे, अपने शेड करेंगे वो लीव्स को, या उनकी ब्रांचेस भी झड़ने लग जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हो, कैक्टस, मोल्ड्स, मशरूम्स, क्रोटन, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. क्रोटन, कैक्टस भी खुद बनाते हैं स्टेम की मदद से. मोल्ड्स एंड मशरूम डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं. ओके, now the next topic in this one is energy flow in living things. The green plants utilize sun energy to make food. We all need energy to do work. Animals and human beings get energy from the plants when we eat them as food. In this way, energy passes from the sun to plants, then to human beings and animals. तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो सन एनर्जी को कैप्चर करते हैं खाना बनाने के लिए, और हम सभी को एनर्जी चाहिए होता है. ठीक है, टू डू आवर वर्क. तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, प्लांट्स को कंज्यूम करने से. इसी वजह से जो एनर्जी है वो पास ऑन होती है फ्रॉम द सन टू द प्लांट्स एंड फ्रॉम द प्लांट्स टू द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ओके, now the next topic in this one is interdependence of plants and animals. Plants and animals cannot survive without each other. All green plants make their own food. All animals and human beings depend directly or indirectly on plants for food. This forms a food chain. Plants also give out oxygen, which is used up by animals. Similarly, plants need carbon dioxide to make their food, and they get it from animals when they breathe out.
तो हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे निर्भर है प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है बिना एक दूसरे के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो अकेले नहीं जी पाएंगे। तो सभी जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और जो सभी जानवर है और सभी ह्यूमन बींग्स जो है वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे, प्लांट्स पे। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होता है, इससे एक फूड चेन फॉर्म होता है जिसमें इंटरडिपेंडेंसी। ओके, अब प्लांट्स जो है वो क्या देते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो कौन सी गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल से मिलती है। और एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन प्लांट से मिलता है। ओके, हियर यू कैन सी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन and carbon dioxide. Interdependence of plants and animals are shown over here in this image. Now student, the next topic is balance in nature. Plants and animals depend on each other, but a balance should be maintained between the number of plants and animals. If all of a sudden the number of plant increases, then the animals would not be able to give enough of carbon dioxide to them for photosynthesis. In the same way, if the number of animals increases, the plants would not be able to supply enough of oxygen to them to breathe, and as a result, the balance of nature will get disturbed. To maintain the balance in nature, we must protect plants and animals. The government has established wildlife sanctuaries to protect the wild animals. Here, hunting and killing of wild animals is banned. Government has launched programs like Vana Mahotsav. Under this program, new trees are planted. Now, people are aware of the harm caused due to the cutting of trees. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। और बैलेंस के लिए तो ये जरूरी है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए बैलेंस को। इफ ऑल ऑफ अ सडन अगर हम सोचे कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो इंक्रीज हो गए, एनिमल्स डिक्रीज हो गए, तो इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसको मेंटेन करना, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मतलब एक बैलेंस फॉर्म में नहीं रहेगा ना ये। ओके, और उसकी दूसरी तरफ अगर प्लांट्स का जो पॉपुलेशन हो कम हो जाए, एनिमल्स का पॉपुलेशन राइज हो जाए, तो इससे प्लांट्स को मुश्किल होगी उनको ऑक्सीजन देने में। ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है वो हर एक एनिमल को पहुंचे, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाई है वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्लांट्स के लिए उन्होंने क्या करा है, एक वन महोत्सव प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसमें ट्रीज को प्लांट किया जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, और हमें काटना भी नहीं चाहिए पेड़ पौधों को। ओके स्टूडेंट्स, now students, before moving further, there is a point, boost your mind. 5th June is celebrated as World Environment Day. 5th June को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वर्ड बैंक इज गिवन, तो आपको ये वर्ड बैंक लिखना है, इसे अच्छे से याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the summary point, main points. Point number 1, plants can prepare their own food with the help of sunlight and chlorophyll. Next one, the tubes that carry water from the roots to the leaves are called the xylem. Next one, the tubes that help in carrying the food made in the leaves to all the other parts of the plant are called phloem. Next one, the process of making food by the plant with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called the photosynthesis. Next one, plants and animals cannot survive without each other. Next one, plants and animals depend on each other, but a balance should be maintained between the number of plants and animals. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको ये फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।